है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन था हमारा एक 11th को ऑनलाइन था और 13th को ये आज ऑफलाइन है। तो इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप होते हैं और उसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम एकेडमिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और समय समय पर कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप करवाते रहें, जिससे कि जो प्राध्यापक हैं और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे लाभान्वित हो। हम समय समय पर कई मुख्य वक्ताओं को आमंत्रित करते रहते हैं और उन मुख्य जो वक्ता होते हैं उनकी जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स होती है उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो he was also talking about the paradoxes in Indian society. So I'll share a couple of examples. He was sharing that everybody in hurry and no one seems in time. It's okay to piss in public, but you can't kiss in public. And our country only, I think, where it's dangerous to talk to stranger, but okay to marry. So these kinds of things, which provokes you to think that what kind of changes we are facing. और आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, तो दो तीन बातें जो मॉडर्निटी को लेकर कही गई है जिस पे काफ़ी सहमतियाँ बनी हैं कि मॉडर्निटी क्या था। एक इवेंट था जहाँ पे इस तरह के रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुए जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। लाइक इंडिविजुअल बिकेम द सेंटर। बहुत एंथ्रोपोसेंट्रिक हो गया समाज, इंडिविजुअल सेंटर में आ गया। तो साइंस बिकेम द डोमिनेंट वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। You are only starting with 2 or 3 major questions and you are trying to answer them in light of certain kind of scientific enterprise. So the question that I have is, जैसे पवन ने बताया कि this whole idea आप लोगों का conference का theme भी is on modernity and modernization and so on and so forth. So society and the entire state India, right, is getting more and more modern. It's becoming more progressive. आप देख लो in terms of our infrastructure, in terms of our different things that we are becoming more and more modern. But at the same time, in the Himalayan region and also in different parts, at least I'm taking the example of 2 regions in Himalayas, you find that groups are actually vouching for tribal identity. By definition, tribes are backward, right? But that's how we actually tend to perceive. So tribes means that they are backward, they are primitive, they are somewhat economically not very progressive, and so on and so forth. We have those kind of ideas. So a paradox है ये. So the society and the nature of the state is becoming more modern. At the same time, groups and communities are demanding for tribal recognition. So as the presentation goes, I'm calling this as I'm trying to study different kinds of groups, different kinds of communities. हिमाचल में भी है, ईस्टर्न हिमालय जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे भी है. So वो दोनों को देख के I'm trying to ask this fundamental questions कि ये process क्या है actually. Who is a tribe in Indian context and why people are demanding tribal recognition. So as I am a sociologist and anthropologist by training, so we engage in ethnographic kind of research. So this is more of ethnography. Ethnography means that you go to the places, to those villages, you talk to the people, you do interviews, you also have focus group interviews and so on and so forth. तो लोगों से बात करके and also in this kind of research में documents become very important. कैसे मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं ग्रुप्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एट कौन से लेवल में ग्रुप्स अप्रोच कर रहे हैं स्टेट को, सो एंड सो फोर्थ. तो इतने ज़्यादा रिसर्च मटेरियल है कि आप अपने गांव के देवता की हिस्ट्री, कल्चर के बारे में छोटे छोटे आर्टिकल्स लिख सकते हैं. क्या नहीं कर सकते आप, बहुत कुछ कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपके प्रोफेसर को. और एक बात और कहना चाहता हूँ, इस बच्चे ने 6 साल मेरे साथ काम किया. इसका सौभाग्य है कि ये बंजार कॉलेज आया है, जबकि हरिपुर कॉलेज में इसकी कसमें नहीं खाते स्टूडेंट. आज हरिपुर कॉलेज का नाम है तो इसकी वजह से है. मेरे टेन्योर में 3 साल में 6 कॉन्फ्रेंसेस हुई जो कुल्लू कॉलेज में. तो लर्निंग होनी चाहिए लाइफ में, तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे बदलती है. तो पूरा क्रेडिट मैं आप बच्चों को देता हूँ कि आप यहाँ आए. सच ए वंडरफुल प्लेस कुल्लू का. तो यहाँ पर जो है ये देखो स्पीति घाटी के स्टोरे पर है. चलिए, एक फैमिली है. ये गैप, हाँ कोई बात नहीं, ये गैप इन नॉलेज इसलिए है कि बहुत कम काम हुआ है.
प्रे स्पीसीज के बारे में और प्रेडेटर के बारे में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। टाइनी सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स है, ये सक करेंगे प्लांट सेट को। आगे बताती हूँ मैं किस, दिस इज द एप्पल प्लांट्स आर अटैक्ड बाय, आपके बगीचे में भी होते हैं, नर्सरीज में भी होते हैं, ये वेजिटेबल्स में भी लगते हैं, क्रॉप्स में भी होते हैं, बाय ए नंबर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट्स। इसमें दो स्पेशल एफिड पेस्ट है, आपने सुना है, एक बुली एप्पल एफिड है और वन इज ग्रीन एप्पल एफिड। ये देखिए ऊपर ग्रीन एप्पल एफिड है और नीचे बुली एप्पल एफिड है।